नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। बसवराज बोम्मई का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कहते हैं कि वे इसे महागठबंधन बोल रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन में ना कोई बंधन है, ना ही कोई बहान है। वे मोदी को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये असंभव है क्योंकि आम जनता, गरीब लोग, किसान, महिलाओं को योजनाएं याद हैं जो उन तक पहुंच रहे हैं, जिसका लाभ उन्हें हर महीने मिल रहा है। Calling as Mahagathbandhan. Actually, there is no Bandhan in this Mahagathbandhan, and there is no Maha also. Their sole aim is to bring down Modi, which is just impossible, because right from the common man, poor man, woman, still remembers all the programs of Narendra Modi which have reached them, and they are taking benefit every month. Farmers in terms of Right Sanman Yojana and Ayushman Bharat in terms of health, and Mudra in terms of employment, new education policy. So these huge benefits the entire mass has taken, especially downtrodden and poor people, including the basic infrastructure right from Swachh Bharat to multi-level infrastructures the country has seen. The country has progressed economically and socially in a big leap. Internationally it has been recognized. And the whole world was really drowning with COVID and struggling to come back economically. India is in forefront. Everybody has recognized. This being a case, these people who have failed as opposition, these people who have been failing continuously, doing dirty politics, to speak ill of our country outside the country in international forums. These people will never be recognized, and this cluster of small sub-regional parties, it doesn't have any bandhan. If zero adds to zero, it is nothing. विपक्ष की बैठक पर बोले डीके शिव कुमार। जी हां, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बताते हैं कि देश की सभी विपक्षी पार्टी आज एक साथ एक नई शुरुआत के लिए एक मंच पर इकट्ठा हो गई है। ये देश के कल को बनाने के क्रम में एक और कदम है। मैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस बैठक की मेजबानी करेंगे। आप सबका यहां आने के लिए बेहद शुक्रिया। The entire opposition party in this country, except few, have joined together for a good beginning. I always tell that joining together is the beginning, thinking together is the progress, working together is the success. I'm sure we have joined. Tomorrow there will be a very big deliberation how to shape the future of this country. This is not an individual political party meeting. It is shaping this country for the future of 140 crores people who have been suffering on various issues. Let me not deliberate much on this. On behalf of Karnataka Pradesh Congress Committee and my Chief Minister, we are just the host for the Indian National Congress. This is a meeting organized by the Indian National Congress. We are just the local host. We feel with this climate, with this understanding, with this unity, we will take it forward and the results will come out as Karnataka has given us a mandate. The entire country will give us a mandate on 24. We take it forward. The rest, entire deliberation on the subject wise, and the results will be briefed by national leaders on this issue. Thank you for coming from all the way from this various part of the country. We are there to serve you better. Thank you. Thank you, शिव कुमार जी। विपक्षी पार्टियों के लिए एक साथ डिनर का आयोजन। जी हां, विपक्षी पार्टियों की बैठक पर कांग्रेस सांसद और कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक है।
23 जून को हमने पहली बैठक पटना में की थी। ये दूसरी बैठक उसी की आगे कड़ी है। बैठक में 26 राजनीतिक पार्टी शामिल होंगी। कल 11 बजे बैठक शुरू होगी। उससे पहले आज रात में विपक्षी पार्टियों के लिए एक साथ डिनर का आयोजन है। Last 23rd June, we had a successful and fruitful meeting of opposition parties in Patna. This is the continuation of that meeting going to be happen. Tomorrow, the meeting will start at 11 o'clock. 26 political parties from all over India is participating in this meeting. We are very grateful to the Chief Minister of Karnataka for hosting a dinner on today evening for the opposition leaders. राजाराम वास्कले के बलिदान पर बोले शिवराज सिंह चौहान। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कल एक बहुत दुखद घटना हुई। हमारे नगर निरीक्षक राजाराम वास्कले अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए वो एक नदी में सबको निकालने के लिए कूद गए, लेकिन वो भंवर में फंस गए और वो आज हमारे बीच नहीं है। वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे और अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनका परिवार अब मेरा परिवार है। मैं ऐसे बहादुर साथी को श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार को 1 करोड़ सम्मान निधि दे जाएगी और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बहुत दुखद घटना हुई। हमारे टीआई श्री राजाराम वास्कले, जो बड़वानी जिले के ही कोइडिया राजपुर के निवासी थे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए वो एक सबको निकालने नदी में कूदे थे, लेकिन दुर्भाग्य से भंवर में फंस गए और हमारे बीच नहीं रहे। वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी पत्नी, 2 बच्चे, एक 4 साल का बेटा और एक 2 महीने की बेटी है। अब वो मेरा परिवार है। हमारे ऐसे बहादुर साथी राजाराम के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और अपनी कर्तव्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कम नहीं हुआ है बाढ़ का संकट, बारिश बढ़ा सकती है मुसीबत। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। अब भले ही यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन पानी जिन इलाकों में भरा वहां के हालात अभी भी खराब हैं। ये है दिल्ली का मयूर विहार, जहां लोग पानी वाले इलाकों से निकल रहे हैं। ये ज्यादातर वो है जो यमुना नदी के आसपास रह रहे थे। खाने की तो व्यवस्था हो रही है, मगर पानी कभी कभी आता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अंदर जाके लेके आते हैं। और कल सर पन्नी लोगों ने बांटी थी, जिनके पास हैं उनको दे दी और हम लोगों के पास थी नहीं। हम सारा सामान लेके आए, पन्नी थी नहीं, बारिश हो रही थी, हमें पन्नी नहीं मिली, हम फिर खरीद के लेके आए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम बचे, हमारा सामान बचा है तो सब कुछ बच गया। सब चीज़ की बढ़िया सुविधा हो रखी है, बीजेपी वालों ने करवाई है। जिस दिन से हम जंगल से उन्होंने हमें रेस्क्यू किया था, वही लाए थे और उन्होंने यहाँ कैंप लगा रखा है। खाना पानी बिल्कुल समय पे मिल रहा हमारे लिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।